Hi guys, I'm back with another lecture of Principles of Management. In this lecture, I'm going to talk about the different kinds of plans that we have. Before we start, just a brief introduction about myself. So I'm Sandhya Rao, working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management. So far, we have covered the topics like group decision making and the decision making process, MBO, and the planning concept. Now we'll talk about kinds of plans, strategic, tactical, and operational planning. So let's get started. So every organization has three kinds of plans: strategic plans, tactical plans, and operational plannings. This can also be understood as that strategic planning is done by the top level management, then the middle level management deals with the tactical plans, and the lower level management deals with the operational plans, which are in routine nature, which are of regular use, या जिनका significance जो है वो सिर्फ ground level के लिए ही रहता है. And the strategic plan is more complex and they require more intellectual exercise. That is why it's given high priority and are taken by the top level management only. Now, the various kinds of decisions that we take when we are talking about strategic plans are the vision, objective, mission, and the values of the organization. So, जो आपका एक बेस प्रिपेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि उनका एस्टैब्लिशमेंट किस रीजन से हुआ है, then what are the prospects of that particular business, what are the values on which the business is based, किस तरीके के उनके ethics हैं, किन उनके क्या धारणाएं हैं, ये सब चीजें जो आप डिसाइड करते हो किसी भी बिजनेस में, this entire thing is covered under the strategic plans. स्ट्रैटेजिक प्लान में आप पूरा का पूरा एक प्रोग्राम सेट करते हैं, पूरा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या होने वाला है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन इन ग्रेट डिटेल. So if I talk about the components of strategic plan, then we have a vision, then we have the mission and the values. So these three components comprises of the strategic plan. Okay. And also long term bearing hai in plans ki. They are not short term in nature because they are going to affect the business in the long run and they're going to determine the image of the business. So the managers of each level will be based on the strategic plan only because this prepares the base for the other plans. The tactical plans will be based upon the strategic plan and the operational plan will be indirectly based on the strategic plan only. Although directly वो tactical plans के ही based पर होंगे, basis पर बनेंगे. So in a nutshell we can say that strategic planning जो है वो पहला base है जिसकी basis पे बाकी चीजें जो हैं वो carry out करी जाएंगी. So what is vision? Vision का मतलब in layman language या एक जो dictionary वाला meaning है वो यही होता है that how you see things, आप कैसे चीजों को देख सकते हैं. So it's on a similar grounds हम ये कह सकते हैं कि किसी भी organization का या किसी भी फॉर्म का जो विजन होता है वो यही होता है that how you want to influence the world, what you try to provide the world with. ठीक है, that's what your vision is. And it can be more idealistic also. यहाँ पे reality जो है वो थोड़ी different हो सकती है vision से. सॉरी जो विजन है वो आपका थोड़ा सा रियलिटी से हटके हो सकता है डेफिनेटली. बट यहाँ पे आप सिर्फ एक फ्यूचर की सिचुएशन दिखाना चाह रहे हो कि हम ऐसा बनना चाहते हैं या हम ऐसा वर्ल्ड के लिए करना चाहते हैं. ठीक है, और हाउ यू वांट टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, हम कैसे वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं, दैट्स योर विजन. So I'll give you some example of different companies with their vision. So if I talk about Apple, then their vision is leaving a mark on the universe, which means वो universe में एक अपनी space बनाना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं. This is what their vision is. अब बाकी की चीजें जो होंगी, जो भी उनके प्लान्स और तरीके के जो बनाए जाएंगे, वो इसी चीज को देखते हुए बनाए जाएंगे कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि अपनी एक छाप छोड़ दे, अपना एक अलग ही उनकी इमेज क्रिएट हो जाए. दिस इज देयर विजन. इसी के बेसिस पे इसीलिए उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हो, कोई भी चीज हो, चाहे उनकी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी हो, प्रोडक्ट की लुक हो, जो भी चीजें हैं वो इसी विजन को देख के ही बनाई जाती हैं जिससे कि हर चीज में ये उनका विजन कंप्लीट दिखाई दे. Then Amazon have their vision as the most customer focused company on the earth.
तो Amazon जो है वो सबसे ज़्यादा कस्टमर फोकस्ड कंपनी बनना चाहती है वर्ल्ड के अंदर, अर्थ के ऊपर, विच मीन्स कि जो और ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो कि कस्टमर रिलेटेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा एफिशिएंट बनना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा कस्टमर फोकस बनना चाहते हैं। मे बी इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस है वहाँ पर मिल जाते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस काफ़ी लो रहते हैं। ऑल्सो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। सो एवरी कंपनी हैव देयर ओन विजन एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स विद देयर विजन, कि वो वर्ल्ड के लिए अपने सराउंडिंग में वो कैसे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। Then the next component of strategic plan is mission. Mission का मतलब होता है what's your objective, and this is more realistic as compared to vision, क्योंकि vision जो होता है वो मैंने बताया कि थोड़ा सा रियलिटी से हटकर हो सकता है। कई बार आप ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, आप एक ऐसा विजन रख लेते हैं मे बी जो शायद आप अकम्प्लिश ना भी कर पाए नेक्स्ट 10 साल, 5 साल, 15 साल में। बट मिशन जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होता है एंड इट्स मोर रेलिवेंट टू द प्रेजेंट टाइम्स, एंड वो रियलिटी से काफ़ी जुड़ा हुआ होता है, and it gives a true picture about your organization, about your business. For example, a company, a clothing company, may want to bring high urban fashion to the masses, while a non-profit organization may come up with a mission to eradicate polio. तो मिशन का मतलब है कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो कोई भी अगर क्लोथिंग ब्रांड है, कोई भी अगर फैशन इंडस्ट्री में कोई भी अगर ब्रांड नया आता है, तो उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है या उनका मिशन तो यही होता है ना कि हमें लोगों को अगर कोई इंडियन क्लोथिंग ब्रांड है तो उनका ऑब्जेक्टिव या उनका मिशन क्या होगा कि हम लोगों को इंडियन फैशन जो है वो प्रोवाइड कराएं। अगर कोई वेस्टर्न क्लोथिंग ब्रांड है, वेस्टर्न कपड़े आउटफिट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, वो सेल करते हैं, देन उनका मिशन क्या होगा दैट वी वांट टू ब्रिंग हाई अर्बन फैशन टू द मासेस, मतलब हम लोगों को वेस्टर्न कपड़े पहनाना चाहते हैं, अर्बन फैशन जो है उसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। And there are n number of NGOs who are working for numerous causes. So let's say if I talk about any one NGO who is working for polio, then उनका मिशन क्या होगा कि हम पोलियो को इरेडिकेट करना चाहते हैं। There might be some other NGO who would be working to eradicate poverty from the society. So every organization has a different mission, which means that वो actually में किस रीजन से सेटअप किए जाते हैं, वो ही आपका मिशन होता है। And the next thing is value. वैल्यू इज समथिंग विच इज मोर इंट्रिंसिक, एंड वैल्यू जो है उससे ये पता चलता है कि आप किन एथिक्स पे बेस्ड हो। ये थोड़ा एथिकल ग्राउंड्स पर आ जाता है कि आपके क्या उसूल हैं, आप किस बेसिस पे चीज़ों को, ऑपरेशंस को कैसे करने वाले हैं, सही गलत का आप कैसे अंदाज़ा लगाने वाले हैं। दिस ऑल विल बी दिस ऑल कैन बी अंडरस्टूड बाय द वैल्यूज दैट योर कंपनी फॉलो। ठीक है, वैल्यू का मतलब कोई आप पॉलिसी से भी रख सकते हैं कि हम हमारी वैल्यूज ये हैं कि हम कोई भी अनएथिकल मींस नहीं यूज करेंगे, वी वोंट यूज एनी अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस, व्हिच मींस कि आप ब्लैक कोडिंग नहीं करेंगे या फिर ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे, होर्डिंग नहीं करेंगे स्टॉक की, and there are a number of things which can come under this also. You would provide only the real or the true advertisements relating to your products. This can be a वैल्यू सिस्टम। तो कुछ कोई भी ऐसी चीज जो जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपकी सही गलत की कैसे आप चीजों को तोलने वाले हैं, उस चीज को हम वैल्यूज कह सकते हैं। ओके, so also if a manager faces any kind of problem or is in a dilemma, then the values will guide the manager in that kind of a situation. तो आपको अगर कंफ्यूजन होती है कभी भी कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस टाइम पे आपको सही गलत की पहचान आपकी वैल्यू सिस्टम से होती है, आपकी वैल्यूज से होती है, एंड आपकी वैल्यूज आपको बताएंगे कि अच्छा ये टाइम पे ये चीज़ गलत है, ये टाइम पे ये चीज़ सही है। एंड वैल्यू इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप अगर आप डिस्क्राइब करना भी चाहोगे तो मे बी आप शायद उसको 1000 पेज में, 1000 पेज के ऐसे में भी शायद डिस्क्राइब ना कर पाओ। और
गूगल के अगर हम विजन की बात करें तो उनका विजन है डू नॉट बी इविल, इट्स ऑल अप टू यू। तो आप कैसे करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। अब आप 1000 पेज का ऐसे लिख के उसको डिफाइन करना चाहते हैं या फिर एक बिल्कुल एक छोटी सी टैगलाइन के थ्रू उसको डिफाइन करना चाहते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। बट पीपल विल रिलेट योर कंपनी विद योर वैल्यू। ठीक है, तो अगर गूगल का वैल्यू जो है वो ये है दैट डू नॉट बी इविल, विच मीन्स कि कोई भी चीज गलत मत करो, बुरे मत बनो, हर चीज एथिकली करो, हर चीज सही से करो। सो दिस इज देयर वैल्यू। ठीक है, देन the next thing is tactical plans. Tactical plans are more शॉर्ट टर्म इन नेचर। वो 1 साल के अंदर अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्लान्स होते हैं, दे आर टैक्टिकल प्लान्स एंड दे आर बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजिक प्लान्स ओनली। स्ट्रैटेजिक प्लान्स के बेसिस पे ही हम इनको प्रिपेयर करते हैं। एंड यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। दे आर द वंस हु एक्चुअली टेक द टैक्टिकल डिसीजंस और हु मेक द टैक्टिकल प्लान्स। And if I talk about the components of tactical plans, then it should be specific with given deadlines. As I've told you कि tactical plans ज़्यादा long term nature के होते नहीं हैं। Within 1 year ये plans जो हैं ये execute हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी प्रॉपर डेडलाइंस रखी जाती है, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं टू द पॉइंट कि हमें हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। सपोज द पर्पस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज टू बिकम द लार्जेस्ट शू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिटी। ठीक है, नाउ द टैक्टिकल प्लान विल स्टार्ट दिस ग्रेट एम्बिशन इन स्मॉलर एंड प्रोसेसेबल गोल्स। आपका मिशन तो ये है कि आपको सबसे बड़ा शू डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, बट आप इसको ईयरली बेसिस पे अपने टारगेट सेट करेंगे जो कि अचीव भी कर सकते हैं और काफी एम्बिशियस भी होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इस ईयर का आपका टारगेट हो सकता है कि मुझे 25% जो है हर क्वार्टर में ग्रो करना है। ठीक है, मतलब 25% से अपने रिवेन्यू को इंक्रीज करना है, या लेट्स से लास्ट 6 मंथ विद इन 6 मंथ्स मुझे 1 मिलियन रेवेन्यू से इंक्रीज करना है। तो इस तरह के आप छोटे छोटे टारगेट्स जो है वो सेट करेंगे जो कि एम्बिशियस भी होंगे, यानी कि आप अपने आप को काफी पुश करने की कोशिश करेंगे और डेडलाइंस के साथ करेंगे। डेडलाइंस, व्हाई डेडलाइंस? बिकॉज डेडलाइन विल इंश्योर एफिशिएंसी। आप अपने काम को, अगर आपके माइंड में वो डेडलाइंस नहीं होंगी तो मे बी आप अगर उस ऑब्जेक्टिव को लेट फुलफिल करते हैं तो मे बी जो आपका पर्पस है वो सर्व ना हो पाए। ओके, so it's very important that you set deadlines for your goals. Then next thing is that you also prepare budgets. Budgets as in budgets का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज को you prepare what your expenses are going to be and from what sources you're going to generate your revenues. ठीक है, अगर फाइनेंशियल बजट की मैं बात करूं, बट यहाँ पे अगर हम हर टाइप की बजट की बात करें तो चाहे वो पर्सोनल को हायर कैसे करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, supplies, manufacturing, and how to execute the day-to-day operations of the company. So everything will be listed out and हर चीज के लिए कितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, वो हर चीज लिस्टेड होगी। ठीक है, विच मीन्स एवरीथिंग विल बी प्लान्ड, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन पेपर एंड उसको फिर उसके हिसाब से हम एग्जीक्यूट करेंगे। Next thing is resources, which means that the tactical plan should list out all the resources available to achieve the objectives of the organization. अब वो resources human resource भी हो सकते हैं, intellectual property भी हो सकती है, कैश रिसोर्स भी हो सकते हैं, या कोई और अदर फिजिकल रिसोर्स भी हो सकता है। सो वट एवर रिसोर्सेज यू नीड टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव दैट शुड बी लिस्टेड आउट। देन नेक्स्ट थिंग इज मार्केटिंग, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा, और जो भी अदर एक्टिविटीज होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो एज टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ योर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसको स्पीड अप करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें टाइमली बेसिस पर होनी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन पेपर होनी चाहिए एंड ये जो छोटे छोटे आप गोल सेट करते हैं दे ऑल शुड हैव अ प्रॉपर डेडलाइन विच यू शुड बी एबल टू मीट ऑन टाइम। ऐसा नहीं है कि आपकी डेडलाइंस हर बार एक्सीड होती जा रही है, दैट शुड नॉट बी द केस।
Then the next thing is operational plans. Operational plans are more routine nature plans, and they are taken by the lower level managers, and ये day to day operations के लिए ही रखी जाती है, इसीलिए इसका नाम भी operational plans है. यहाँ पे आपके काफ़ी टाइप के प्लान्स आ जाते हैं. ये सिंगल यूज भी हो सकते हैं, परमानेंट प्लान्स हो सकते हैं, पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर्स. ठीक है, सो वील स्टडी देम नाउ वन बाय वन इन डिटेल. सो स्टार्टिंग विद मिशन. अब हम सारे की जितने भी हमारे प्लान्स होते हैं उन सबको अब हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं. ओके, सो मिशन. मिशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, जो कि बहुत बेसिक, आपका एक बेसिक फंक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल जो बनते हैं, व्हाट्स द मिशन ऑफ स्कूल्स? टू इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. ठीक है, यही उनका मिशन होता है. हॉस्पिटल्स क्यों कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं? व्हाट्स द मिशन ऑफ हॉस्पिटल? टू क्योर द पेशेंट्स. ठीक है, ये आपका बेसिक, एक जो बिल्कुल आपका बेसिक फंक्शन होता है, वही आपका मिशन होता है या पर्पस होता है, जिसकी वजह से आपने आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है. नेक्स्ट थिंग वुड बी, लेट्स से कोई भी सैलून या ब्यूटी पार्लर का मिशन क्या हो सकता है? कि आपकी ब्यूटी को एनहांस करना. ठीक है, एक्सटर्नल ब्यूटी को एनहांस करना. दिस वुड बी देयर मिशन. तो मिशन का मतलब यही है कि जो आपका एक बेसिक फंक्शन होता है, जो टास्क होता है इंटरप्राइज का. ठीक है, विच मेक्स देयर वर्किंग मीनिंगफुल, मोर मीनिंगफुल. ठीक है, कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, वही आपका मिशन होता है. ओके, देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब है वो थोड़ा सा मिशन से आगे जाके एक स्टेप आगे होता है, जिसका मतलब है कि आपने अगर ये स्कूल बनाया है, ठीक है, नॉलेज इम्पार्ट करनी है, अंडरस्टूड, बट उसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? विच मीन्स एक एक हर ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जिस पर्पज से उन्होंने वो चीज़ स्टार्ट करी है. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ स्टार्ट करी है, मैंने अगर एक स्कूल स्टार्ट किया, तो मेरा विजन डेफिनेटली यही है दैट आई वांट टू इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. माय ऑब्जेक्टिव कैन बी दैट मुझे स्टूडेंट्स को उनको मुझे प्रीमियम इन एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करानी है, सो दैट वो अच्छे कॉलेजेस में उनको उनको मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देनी है, उनको मुझे जॉब ओरिएंटेड बनाना है. ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है. ठीक है, दैट आई वांट 90% रिजल्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स. ठीक है, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती हूँ कि मुझे टॉप 5 स्कूल्स में आना है जिनका रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा हो. तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है. ओके, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो सकता है, दैट ओके आई वांट टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. लेट्स से मुझे अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनी बनना है. दिस कैन बी माई ऑब्जेक्टिव. ठीक है, लेकिन मिशन क्या होगा? जिस भी चीज़ में मैं डील कर रही हूँ, उस चीज़ को लोगों तक प्रोवाइड कराना, दैट वुड बी माई मिशन, बट माई ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज पॉलिसी. Policy is something which is a general statement which provides guidance in decision making to various managers. Policies आपको guide करती हैं. तो if my objective was that I want to raise my result to 90% या 95%, अगर मुझे सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो ऐसा चाहिए कि सबके मार्क्स अच्छे आए, 90%, 90s में मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो मेरी पॉलिसी क्या होगी फिर? तो मे बी मेरी पॉलिसी ये है कि आई गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम an entrance exam, and I'll get only those students who score above 90% marks in the entrance exam. तो ये मेरी पॉलिसी हो सकती है कि मैं एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे लूंगी, और एंट्रेंस में भी जिनके मार्क्स 90% से ज़्यादा आएंगे. सो दिस कैन बी माई पॉलिसी. ठीक है, तो पॉलिसी क्या होता है? वो आपको गाइड करती है, डिसीजंस लेने में हेल्प करती है कि आप कैसे जो अपना मिशन है या जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे पूरा कर सकते हो. ओके, policies define the boundaries within which this decision will be made. तो अब मेरे को बाउंड्री मिल गई है कि भाई मुझे कोई भी और स्टूडेंट को लेना ही नहीं है एडमिशन जिसके 90% से कम मार्क्स आए या जो एंट्रेंस ना क्लियर कर पाए. ओके, so it sets a framework within which you have to operate.
देन द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज है जो अगर मैं पहले की बात करूँ तो हम उसको नेगेटिव लाइट में देखते थे, व्हेन द मिलिट्री और लेट्स से एनी अदर पर्सन वुड यूज स्ट्रैटेजी टू अटैक ऑन ईच अदर, हम षड्यंत्र जो बनाते थे उसी को हम स्ट्रैटेजीज बोलते थे। बट नाउअडेज इट हैज बीन यूज्ड इन अ पॉजिटिव लाइट एज वेल, एंड जो इसका स्कोप है वो भी काफी वाइडन अप हुआ है। सो स्ट्रैटेजी डेफिनेटली हैव अ लॉन्ग टर्म बेयरिंग, एंड यहाँ पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स लाने के लिए आप कैसे रिसोर्सेज को लगाने वाले हैं वही आपकी स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल पाती है ऑर्गेनाइजेशन की, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू द थिंग्स। ठीक है, इट डू नॉट अटेम्प्ट टू आउटलाइन दी प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम को डिफाइन नहीं कर रही है, बट ये आपको स्ट्रैटेजीज बता रही है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देन प्रोसीजर मीन्स कि आप जो गाइडलाइंस हैं उनको और कैसे मतलब अचीव कैसे करने वाले हैं आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, या जो आप एक्शन करने वाले हैं उसकी डिटेल्स, यानी कि जो एक्चुअली में आप अपना प्रोसेस जो कैरी आउट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया दैट ओके आपको 90% रिजल्ट चाहिए अपने स्टूडेंट्स का, जिसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएंगे एंड ओनली 90% से अबव मार्क्स लाने वाले बच्चों को ही एडमिशन देंगे। ये आपकी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सब हो गया। अब प्रोसीजर क्या होगा कि आप उनकी स्टडीज का कोर्स डिसाइड करेंगे, उनका सिलेबस डिसाइड करेंगे, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर कुछ होनी है तो वो डिसाइड करेंगे। इस तरीके के आपको उनको टेस्ट लेने हैं, अगर आप कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देनी है तो आप एक्टिविटीज किस तरह की कराएंगे, ये आपका प्रोसीजर होगा। ये आपने डिटेल्स जो है वो लिस्ट आउट कर दी है कि क्या क्या एक्शन जो आप करने वाले हैं उसकी डिटेल्स क्या क्या होंगी। ओके, देन तो प्रोसीजर को हम ये कह सकते हैं इट्स अ गाइड टू एक्शन, वेयर एज अ पॉलिसी इज अ गाइड टू थिंकिंग। पॉलिसी जो है वो आपको प्रोसीजर बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इट्स अ गाइड टू थिंकिंग एंड प्रोसीजर इज अ गाइड टू एक्शन, जो कि आपको एक्शन लेने में हेल्प करेगा। नाउ पॉलिसीज जो है वो गाइडलाइंस है कि हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं, और प्रोसीजर वो है जो आपको मेथड्स बताता है कि कैसे आप अपने टास्क को अकम्प्लिश कर पाएंगे। ओके, then the next thing is rule. See, rules are specific statements which lists out कि क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। रूल्स वो हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, दे आर फाइनल एंड दे आर इन देयर एब्सोल्यूट फॉर्म। जिस तरीके से वो हैं वो उसी तरीके से माने जाएंगे, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते, कोई फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप नहीं होती। ऑल्सो रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑल द पीपल। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन के लिए रूल डिफरेंट होगा, किसी और के लिए दूसरा होगा। रूल्स आर ऑल परवेसिव एंड दे आर यूनिफॉर्म इन नेचर, एंड इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स देन यू विल हैव टू फेस सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, रूल्स जो है वो एक डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कराते हैं, एंड ऑल्सो दे गाइड द एक्शन एंड द बिहेवियर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूल है दैट स्मोक नहीं करना, द रूल ऑफ नो स्मोकिंग इज वन सच एग्जाम्पल। अगर नो स्मोकिंग है तो नो स्मोकिंग ही है। अगर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है इट मीन्स नो पार्किंग है, मतलब पार्किंग नहीं करनी, स्मोक नहीं करना। अगर आप करते हैं फिर भी तो आपको उसके लिए पीनलाइज किया जा सकता है, उसके लिए पनिश किया जा सकता है। एंड इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि आप अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर हैं तो आपके लिए वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीवन एंड इट्स यूनिफॉर्म इन नेचर। देन द नेक्स्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है वो एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है जो कि कंपनी की सारी चीज़ों को डिफाइन करता है, पॉलिसीज को, रूल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, प्रोसीजर्स को, हर चीज़ को क्लियरली डिफाइन करता है प्रोग्राम। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूँ तो कोई भी अगर प्रोग्राम है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया, लेट्स से जब उन्होंने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उसमें जब उन्होंने वो प्रोग्राम लॉन्च किया तो दे हैड अ मिशन आल्सो, दे हैड पॉलिसीज आल्सो, दे हैड रूल्स आल्सो, दे हैड सर्टेन प्रोसीजर्स आल्सो। तो ये क्या है, पूरा का पूरा प्रोग्राम है जिसमें कि सारी चीजें लिस्टेड है। ठीक है, प्राइमरी प्रोग्राम्स जो हैं वो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में बनाए जाते हैं, और जो प्राइमरी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना लेते हैं।
And the next thing is budget. Budget का मतलब होता है when you list out what your expenses and what your incomes are going to be. अब financial budget भी हो सकता है, नॉन financial budget भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये कोई भी लेवल पे प्रिपेयर किया जा सकता है। यूजुअली दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड इसमें आपको एक क्वांटिफिकेशन मिल जाता है कि कितना आपका एक्सपेक्टेड फोरकास्ट जो है वो मिल जाता है आपको, ठीक है। कि फ्यूचर में जो जो चीज़ें होने वाली हैं उनको आप एंटिसिपेट करते हो एंड एक अपने सामने क्लियर पिक्चर रखते हो। दैट इज व्हाट बजट इज ऑल अबाउट। ओके, सो now these are different kinds of plans that we have. Standard और repeated use plans. स्टैंडर्ड प्लान्स वो होते हैं जो कि रिपीट किए जा सकते हैं, जो कि एक ही बार लिए जाते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, विच डू नॉट अकर अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजीज, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार चेंज नहीं होती हैं। इनको एक बार बना दिया जाता है, इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। Single use plans, in contrast to standard plans, are non repetitive in nature, and once they are being made, they will be used, and after that, they will be abandoned because हर बार उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम उनको बार बार सेम नहीं रख सकते हैं, तो वो सिंगल यूज प्लान होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को करने का अगर कोई फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम जो है वो सेम नहीं हो सकता हर बार, प्रोग्राम हर बार चेंज होगा। तो प्रोग्राम के लिए जो हम प्लान्स बना रहे हैं दे आर सिंगल यूज प्लान्स, ठीक है। एक प्रोग्राम कभी भी दूसरे प्रोग्राम के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी आपको प्रोग्राम बनाना है कोई भी नया, तो आप एक डिफरेंट प्लान करेंगे, तो इसीलिए वो एक सिंगल यूज प्लान है, ठीक है। देन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्लान्स हैं। फाइनेंशियल प्लान्स वो होते हैं विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, विच डील्स विद द कैश कंपोनेंट, विच डील्स विद द मॉनेटरी एस्पेक्ट, एंड नॉन फाइनेंशियल विच डज नॉट डील विद द मॉनेटरी एस्पेक्ट, जो कि फिजिकल रिसोर्सेज के साथ डील कर सकता है या किसी भी रिसोर्स के साथ डील कर सकता है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, जो कि मनी से रिलेटेड नहीं है, जो कि कैश से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। So any plan, be it strategy, be it any policy which is not relevant or which is not relating to monetary terms, then that can be non-financial plan. और financial plan का सबसे अच्छा example है cash budget, जो कि हम prepare करते हैं. So that's the best example for financial plan. Then we have formal and informal plans also. Formal as in which are in written form, black and white paper mode पे जो होते हैं, and which have clear specific objectives that needs to be achieved, and कि काफ़ी systematic होते हैं, rational होते हैं, and they are quite necessary for the successful running of the organization. बट कुछ इनफॉर्मल प्लान्स भी होते हैं जो कि कुछ इनफॉर्मल रिलेशंस की वजह से बनाए जाते हैं, but problem is that these kinds of plan promote unhealthy tendencies like carelessness, ineffective employee performance because they are informal in nature. कोई भी ऐसी प्लानिंग जो आपने वर्बली करी है या इनफॉर्मली अगर करी है तो वो इफेक्टिव होगी या नहीं, nobody can guarantee for that. Okay, then we have specific and routine plan as well. स्पेसिफिक प्लान वही हैं जो काफ़ी स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। यूजुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस तरह के प्लान्स को डेवलप करना। रूटीन प्लान जो हैं, जो रोज़ के बेसिस पे बनाए जाते हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे करते हैं, वो रूटीन प्लान्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपका डेली शेड्यूल है, जो डेली का टाइम टेबल है, जो आज आज आपसे ये काम कराया जाएगा, आज आपसे ये काम कराया जाएगा, तो ये रूटीन प्लान्स हैं, ठीक है, ऑपरेशनल प्लान्स हैं ये। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिव प्लान्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स है वो हैं जो कि एक आपके लिए बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि यूजुअली मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती हैं, which provide guidelines for operative plan. It provides a framework within which you have to operate. Administrative plans में यही होता है। एंड ऑपरेटिव प्लान जो है वो अगेन वो रूटीन प्लान्स की तरह हैं, जो कि डे टू डे एग्जीक्यूशन के लिए होता है, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए होता है। ये यूजुअली शॉर्ट टर्म इन नेचर है, and they are done by the lower level management.
Then we have short range plan and long range plan, which is considering the time concept. जो एक साल के अंदर अंदर ले लिए जाते हैं, जो कि जिनका सिग्निफिकेंस एक साल के अंदर अंदर होता है, वो शॉर्ट रेंज प्लान है. जिनका एक साल से ज़्यादा टाइम का बेयरिंग है, वो लॉन्ग रन प्लान है. देन वी हैव strategic and tactical plans. This I've already explained you what it means. So this is it for today's lecture. I hope you have understood it well. And the two questions that I want to give you from this lecture are, you have to explain what are the different kinds of plans that we have, as in the strategic, tactical and operational plans, and what are the classification of plans जो कि हमने अभी अभी discuss किया. Okay. So this is it for today's lecture. Thank you guys.